پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ مسیح کے مبارک ترین نام میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آج شب پھر آداب بجا لاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات کسی بڑے سے بڑے شرف سے کم نہیں ہے کہ خداوند کا خادم کہلاؤں اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کا ایک ایلچی بن کر خدا کی محبت کے پیغام کو قوموں اور امتوں تک مختلف ذرائع سے لے جانے والا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور شرف اور اعزاز نہیں ہے۔ اس کے لیے ساری عزت اور سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتا ہوں، کیونکہ وہی تعریف، حمد، ستائش، عزت اور بزرگی کے لائق ہے۔ جو گیت آپ نے ہمارے ساتھ follow.jesus7 کی سکائپ آئی ڈی پر گائے، آپ نے جو دعائیں کی ہیں، میں ان سب کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہم پاک کلام کو باہم مل کر سیکھ سکیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آج پھر اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشیں گے، قبل اس کے کہ میں اپنے اس حوالے کی طرف جاؤں جس پر میں آج بات کروں گا، یعنی زبور 96 اور اس کی 4 آیت سے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبور 40 کی 3 میں لکھا ہے، اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ وہ تیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس آیت کا پڑھنا اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن اس کا اس زبور سے کیا تعلق ہے جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں ہم دیکھیں کہ کیا تعلق ہے زبور 96 اور اس کی 4، 5 اور 6۔ ان 3 آیات پر آج میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ زبور کس نے لکھا۔ علماء خاموش ہیں کیونکہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے ہم پہلے کہتے چلے آئے کہ اگر کوئی ایسا زبور ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ فلاں کا زبور ہے، داؤد کا ہے، موسیٰ کا ہے، تو اس کے بعد جب تک کوئی نیا ٹائٹل نہیں آتا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے کہ اسی پہلے والے کے ہی یہ زبور ہیں۔ لیکن یہ زبور جو 96 ہے، اس کی بابت میں اتنی ڈیٹیل تو نہیں جانتا، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بزرگ داؤد بادشاہ نے روح القدس کی تحریک سے لکھا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ اور رہنماہان اسرائیل کے ساتھ جو مذہبی تھے، عہد کے صندوق کو لے کر شہر یروشلیم
में दाखिल होते हैं। और शायद यह बात आपके लिए हैरानगी का सबब हो कि इस ज़बूर की जो पहली 12 आयात है, मैं इन 12 पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मालूमात के तौर पर बात कर रहा हूं। यह आयात हम तवारीख की पहली किताब, तवारीख की पहली किताब और उसकी 16वीं आयत से, इसके 16वें बाब की 23 आयत से लेकर 33 आयत तक, तवारीख की पहली किताब, इसका 16 बाब, इसकी 23 आयत से लेकर 33 आयत तक हू बहू वही आयात हैं जो तवारीख की किताब में लिखी है, वही जो यहां इस ज़बूर में है। और जब हम तारीख की किताब का यानी तवारीख की किताब का मुतालिया करते हैं और इस 16वें बाब को देखते हैं, तो वो उस वक्त का जिक्र करता है जब दाऊद, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अहद के संदूक को लेकर, इसराइल की हशमत को लेकर फिर से वापस शहर यरूशलेम में आते हैं। और उस वक्त ये गीत, ये मजमूर, ये ज़बूर पाक यहोवा खुदा की सताइश के लिए गाया जाता है। ये एक मोतबर ख्याल है कि अगलब है कि दाऊद ने लिखा, क्योंकि वो वहां भी दाऊद का ही गीत है जो तवारीख का मैंने हवाला दिया, पहला तवारीख 16 बाब। अब एक बात जो यहां हमारे लिए गौर तलब है वो ये है कि इन पहली 3 आयात में हम ऑलरेडी मर्द खुदा की मार्फत सीख चुके हैं कि ज़बूर नवीस कौमों और उम्मतों को, खुदा के लोगों को मदऊ कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि आओ क्या करो, खुदा के हुजूर, यावे के हुजूर एक नया गीत गाओ, एक नया गीत। और ए अहले जमीन, आप सब खुदावन के हुजूर गाओ, खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। ये वो बातें हैं, वो आयात हैं जिन पर हम गुजरे कल सीख चुके हैं। मुख्तसर ये कि ज़बूर नवीस पाक रूह की तहरीक से कौमों और उम्मतों को और अहले जमीन को, खुदा के लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि आए खुदावन के हुजूर एक नया गीत गाए। याद रखिए, एक नया गीत। नंबर 2, यहां पर लिखा है रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो और उसके अजीब कामों का जिक्र करो। इन आयात पर तफसीर ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ मैं तमहीद के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ज़बूर नवीस की जिंदगी में कोई बात थी तो इसीलिए वो ये कहते थे कि आओ सब लोगों, धरती के तमाम रहने वाले लोगों, खुदा के नाम की बिशारत दो, उसके लिए एक नया गीत गाओ और उसके अजीब कामों का जिक्र करो।
मसीह से 1000 बरस पहले बुजुर्ग दाऊद आए, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए सवाल यह है कि क्या हम इस वक्त सोच सकते हैं कि खुदा ने मेरे जीवन में क्या नया काम किया है आज के दिन? कौन सा ऐसा काम है जिसकी बाबत मैं दूसरों को बताऊं? अजीब काम। क्या मैंने नजात का लिबास पहना है कि उसकी बिशारत दूसरे लोगों को दूं? शायद माजी में जो गीत गाते रहे, या हम मसीह की बातें दूसरे लोगों के साथ करते रहे, अब हम अपने आप में सोचते हो कि अब इसके बाद क्या करूं। और अगर कोई ऐसा मैसेज दिल में नहीं जो दूसरों के साथ शेयर करे, तो इस वक्त इस बात पर गौर करने और सोचने की जरूरत है, क्या मेरा खुदा मेरे साथ वफादार नहीं है? क्या उसने मेरे साथ आज कोई वफादारी नहीं की? क्या कोई नई बात है जिसका मैं दूसरों से तज़किरा करूं और जिक्र करूं? और अगर हमें कुछ नजर नहीं आता कि क्या बात करूं, तो फिर हमें अपने आप पर अफसोस होना चाहिए। अगर यही क्लास जो आज बाइबल स्टडी की है, अगर आप मेरे सामने बैठे होते, तो शायद मैं 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम आपको देता और मैं खामोश, और मैं आपको कहता कि प्लीज आप एक दूसरे को बताएं कि खुदावंद ने आपके लिए क्या काम किया है, नया काम, नया मौजूदा, नया अजीब काम क्या किया है खुदावंद ने आपके लिए। अपने दिल में सोचिए, अपने जहन में इस बात को सोचिए कि क्या कोई ऐसी बात है कि अगर मैं इस वक्त एक ऐसी क्लास में बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं, तो किसी दूसरे को बता सकूं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया। देखिए, जो खुदा जिंदा है ना, वो जिंदा होने का सबूत देता है। गैर माबूद मुर्दे कुछ नहीं कर सकते। जो जिंदा है वो हर रोज हमारी जिंदगी में काम करता है। हम इस बात को कभी ना भूलें। ये हमारे लिए गौर तलब और अहम तरीन बातें हैं। मैं एक स्कूल में छोटा सा एक जॉब करता हूं, एक बच्चे को टीच करता हूं, समझाता हूं। लेकिन अभी वो बच्चा कुछ आगे बढ़ गया और अब वो यहां की लैंग्वेज, जबान समझता है, और अब शायद वो इतना जरूरत फील नहीं करता कि अब मेरी उसको जरूरत हो। इंतजामिया ने कहा कि सर, क्या यह मुमकिन है कि हम 1-2 हफ्ते इसको देखें? मैंने कहा श्योर, यह बहुत अच्छी बात है कि यह खुद अपने आप को स्टैंड करे। अगरचे मुझे कुछ वहां से मुआवजा मिलता था, यह नहीं कि नहीं। और फिर इस मुआवजे के इवज मैं सोच सकता था, हाय अल्लाह, हुण मैं की करांगा। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया कि जी ये तो एक था, अब 3 और बच्चे हैं जिनके साथ मैं आइंदा के लिए काम करूंगा, जो मेरी सपोर्ट है। और ये आज की बात है, ये नई बात है जो खुदा ने मेरे जीवन में की।
یہ نیا کام ہے میرے لیے جو خداوند نے کیا. میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ شاید آپ کے لیے یہ چھوٹی باتیں ہیں. میرے لیے خدا کا کوئی کام چھوٹا نہیں، سارے کام بڑے ہیں، کیونکہ میرا خدا بڑا ہے. اور آپ کی زندگی میں اس نے آج کیا کیا؟ خود سوچیں اور اس پر غور و خوض کرنے والے ہوں. However, آیت 4 یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے. کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ زبور نویس اہل زمین کو خداوند کی تمجید، حمد اور ستائش کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی بزرگی اور خدا کی عظمت کی، تو مجھے اس کی تکمیل، مکمل تکمیل بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب میں ملتی ہے. مکاشفہ 5 باب اور اس کی 9 آیت. یہاں پر لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. کون سا؟ کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. یہ مکمل طور پر تکمیل فیوچر، مستقبل قریب میں اور شاید بعید میں ہو. لیکن آج میرے پاس اور آپ کے پاس یہ میسج ہے کہ خدا کی نجات بخش کاموں کا، خدا کی بزرگی اور عظمت کا ہم قوموں میں اور امتوں میں اشتہار دینے والے ہوں. یہ جو ہمیں دعوت دی گئی ہے، کیوں دی گئی؟ آیت 4، 5 اور 6 میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے. اس لیے کیونکہ خداوند بزرگ ہے. بزرگ کے معنی عظیم، بڑا، اکبر ہے. وہ اصغر یا صغیر نہیں، وہ کبیر ہے. خدا بہت عظیم ہستی ہے، خالق ارض و سما اور دنیا و ما فیہا، سب کا خالق رب العزت ہے. اس جیسا اور کوئی نہیں، اس لیے اس کی تمجید کی جائے کیونکہ وہ بزرگ ہے اور نہایت ستائش کے لائق ہے. یعنی جتنی زیادہ خدا کی تعریف اور ستائش کی جائے اتنی کم ہے. یہ بڑی گہری بات ہے بھائی. خدا کی ہم ستائش اور تعریف کتنی کریں گے کہ کافی ہوگی؟ یہ کہنا آسان ہے، لیکن خدا کی تعریف کرنے کے لیے ہماری زندگیاں بیت جائیں، 24/7 فرشتوں کی طرح لگے رہیں، پھر بھی بہت کچھ ہوگا جو باقی ہوگا. آیت کا دوسرا حصہ، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. اس دنیا میں لوگ کتنے معبودوں کی پوجا کرتے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
अगर अहले हिंद की बात करें तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग 33 करोड़ देवताओं को मानने वाले हैं। 33 करोड़। अब कब और किस वक्त वो किसी इन तमाम को राजी करते होंगे, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। और हमारे मशरकी मुआशरे में, सरजमीन पाकिस्तान में लोग कितने माबूदों को मानते हैं, आप खुद इसकी बाबत सोच सकते हैं। और फिर सुनने में आता है कि खुदा की जात में शिरक करना कुफ्र है। लेकिन हर एक ने एक नहीं कई माबूद पाल रखे हैं जिनको वो चारा डालता रहता है। यह सोचने का मुकाम है, मुझे भी और आपको भी। हम जो इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, जरा सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस माबूदे हकीकी के अलावा भी कुछ माबूद घड़े हुए हों। जरूरी नहीं कि कोई मूरत खड़ी करके उसके आगे प्रणाम करना, ना ना ना, जरूरी नहीं है। शायद मेरी खुदी, मेरा घर बार, मेरा बंगला, मेरी एजुकेशन, काला गोरा पीला नीला, जिसके टुकड़ों पर शायद मैं पलता हूं, शायद वो मेरा माबूद हो। शायद मेरा शोहर, शायद मेरी बीवी, शायद मेरी औलाद, शायद मेरे वालिदैन, शायद मेरी अना, जिसको कभी मसलूब नहीं किया। कौन से माबूद की हम आज पूजा और प्रस्तश करते हैं, कितने माबूद हैं, सोचना है। मैं समझता हूं कि इस बाइबल स्टडी का फायदा इसी में है कि हम इधर उधर देखने के बजाय, ओ फलां का एक माबूद है, हा 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 हा, नहीं 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 नहीं। मैं सोचता हूं इस वक्त हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जिंदगी लंघ गई है दूजियां ते सोचा नास्ते, अज अपने आप ते सोचन दी लोड़ है कि मेरे कौन कौन से माबूद हैं जिनसे मैं उल्लू सीधा करवाता हूं। शायद पादरी भी हूं। देखना है इस बात के बारे में। लेकिन जब हम आयत 5 में जाते हैं तो वहां लिखा है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं। महज बुत। और कामों के माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदाबंद ने आसमानों को बनाया। वो खालिक समावात है, आसमानों का बनाने वाला, खल्क करने वाला रब्बुल अफवाज। उसके मुंह के दम से ये सब कुछ बना है। कौमों के सब माबूद महज बुत हैं। बुत के लिए जो लफ्ज हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं वो आइडल है। और स्पेलिंग की बात है, एक और लफ्ज भी जिसका साउंड ऐसा ही है, आइडल, उसके माना बेकार या निकम्मा के हैं, फजूल। और मैं समझता हूं कि यह बात बुत पर फिट आती है कि वो खुद अपने आप में निकम्मा है, उसमें कोई पावर और कोई ताकत नहीं है।
کہ وہ اپنے اوپر سے کبوتر کی بیٹ بھی صاف کر سکے. لیکن جو زندہ خدا ہے وہ ہے جو اپنے لوگوں کی فریاد کو سنتا اور اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر جواب بخشتا ہے. قوموں اور امتوں کے معبود محض بت ہے، اور ایسے گیت بھی خدا کے لوگوں نے بنائے اور گاتے بھی ہیں جو ہمارے لیے بڑے چیلنج کے طور پر ہیں. اور عزیزو، اس آب حیات کے چشمہ کو چھوڑ کر اگر ہم اور معبودوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر کلام کیا کہتا ہے؟ غیراں دے نال بن دے کول قرار ہن جیڑے انہاں دے دکھ سدا ودن گے بتیرے. شاید ہم سوچیں کہ وہاں جانے سے یوں کام ہو جائے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں ہم ہیں، اگر خدا کی حضوری کو محسوس کریں دل سے، اس کے مسا کو، تو وہ وہاں پر موجود ہے. صرف اس کی پوشاک کو ایمان کے ساتھ چھو لینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری زندگی میں بڑا اور عظیم کام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یہ خدا یہوہ جس جیسا اور کوئی معبود نہیں، وہ ہے جس میں آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی، بحر و بر کو اور بحری حیات کو بھی اسی نے بنایا ہے. ہم اس خدا کے حضور شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور کاش کہ ہم اس کو جان سکیں کہ وہ کس قدر عظیم اور بزرگ خدا ہے. اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند آج رات خواب میں اور رویا میں مجھ پر اور آپ پر اپنی قدرت کو، اپنے مسا کو اور اپنے عجیب کاموں کو ظاہر کرے، تاکہ ہم دوسروں کو آنے والے کل یہ بتانے والے ہوں کہ میرا خدا کس قدر عظیم خدا ہے. آیت 6 آج کے لیے آخری. عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہے. عظمت کا لفظ عظیم سے نکلا ہے. جو عظیم ہے اس کی عظمت ہے، شان، اور اس کی بزرگی. اس کی شان ہے، اس کی عزت اور اس کی تعظیم اور اس کی بزرگی ہے. اور جلال خدا کے ارد گرد جہاں کہیں خدا کی ذات ہے، اس کے ارد گرد جو اس کا نور اور اس کا جلوہ محسوس ہوتا ہے، وہ خدا کا جلال ہے. ہم اس جلال میں اور اضافہ نہیں کر سکتے، ماسوا اس کے کہ اے خداوند میرے وسیلہ سے بھی آپ جلال پائیں، یعنی آپ کی تمجید ہو، آپ کو جلال ملے، اور زیادہ قوموں اور امتوں کے آپ کی طرف رجوع لانے کے سبب سے. عظمت اور جلال خدا کے حضور میں ہے. یہاں یعنی جہاں خدا ہے وہاں عظمت بھی ہے اور جلال بھی ہے. اور آگے لکھا ہے قدرت اور جمال
उसके मकदस में है। कुदरत से मुराद खुदा ही वो काम जो कर सकता है। यह कुदरत का लफ्ज किसी इंसान के लिए कि वो साहिब कुदरत है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हां, नाम हो सकता है किसी का भी कुदरत, लेकिन एक बात जरूर है कि किसी शख्स के लिए कि उसकी कुदरत का क्या बयान, नो एंड नेवर। हम ये लफ्ज किसी बशर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कादर होने, साहिब इख्तियार होने की बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा के लिए ही ज़ेबा है। और जमाल, जमाल लफ्ज जमील से भी ताल्लुक रखता है, और इसके माना हसीन या खूबसूरत के हैं। कुदरत और जमाल, खुदा की अजमत और बुजुर्गी, उसके अजीब काम, उसका अख्तियार और उसका हुस्न और उसकी खूबसूरती, उस हुस्न और उस खूबसूरती को अगर जानना चाहें तो फिर बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम मुकाशफा की किताब का मुतालिया कीजिए। यूट्यूब चैनल पर मुकाशफा की किताब के तकरीबन 19 बाब पर गुजरे 5 सालों में स्टडी दी, और अगर आप वहां सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अबदी बादशाह, अंग्रेजी में ABDI स्पेस BADSHA, अबदी बादशाह, और आयत ब आयत, लफ्ज ब लफ्ज आपको वहां पर यह बाइबल स्टडी मिलेगी। यह खजाना कै के लिए है? मेरी अपनी जात के लिए? नो, आपके लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए, कि वो इससे फैजियाब हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर यही लिखा है कि उसके मकदस में, अगरचे ये हैकल की तरफ इशारा है, लेकिन अगर दूसरे लफ्जों में हम देखें तो आज मैं और आप मकदस हैं खुदा के। अगर हम मसीह को पाए हुए हैं, पाक रूह हम में काम करता है, हम उसको काम करने देते हैं, मसीहा के लहू के वसीला से हमारी तकदीस हो चुकी हो, तो फिर हमें इस बात को जानना है कि मसीह मेरे जीवन में है, पाक रूह मेरी जिंदगी में है, और आज मैं खुदा का मकदस हूं। और खुदा इस मकदस के वसीला से अपनी कुदरत जाहिर करना चाहते हैं, अपना जमाल जाहिर करना चाहते हैं, अपना जलाल जाहिर करना चाहते हैं, और अपनी अजमत और अजीब कामों का दूसरे लोगों से बयान करना चाहते हैं। आज मुझे और आपको इस कलाम के इस हिस्से पर सोचना और गौर-व-खोज करना है कि मैं और आप रूहानी पहलू के एतबार से हम किस तरफ जा रहे हैं। और ज़बूर नवीस आने वाली आयात में मजीद कौमों और कबीलों और उम्मतों को उस बड़ी कवायर जो खुदावंद की अजमत और बुजुर्गी के गुण गाती है, मैं शमूलियत के लिए मदऊ करता है। और आज मैं आपको भी यही दरखास्त करूंगा, आए इस कलाम की रोशनी में खुदा के अलावा हमारी जिंदगी में अगर कोई भी बुत है, ढा दें उसको यस्सु के नाम से। आए हम खुदावंद के साथ वफादार हो जाएं,
और अगर नजात का जाम नहीं पिया तो केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए हम अपने आप को उस जिंदा खुदा माबूदे हकीकी के स्पुर्द करें, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। मैं आप सब के साथ मिलकर एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि फेसबुक के कई पेजेस पर मैं इस वक्त देख नहीं रहा, लेकिन मैं बाद में देखता हूं कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स वहां पर लिखते हैं। लेकिन मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं जानता। मैं जनरल दुआ करूंगा, लेकिन एक है जो आपके दिल की आरजू और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को जानता है। मैं दुआ करूंगा, वो आपके ईमान के मुताबिक मोजज़ा करेगा। आए हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदा यहोवा पाक, हम ममनून हैं आज शाम के लिए कि यह खूबसूरत वक्त आपने हमें दिया है कि हम अपने आप पर गौर कर सकें, अपने आप को टटोलें और देखें कि रूहानी पहलू के एतबार से हम कहां हैं। रब्बुल इज्जत, जो भी गैर माबूद हमारी जिंदगी में, हमारी सोचों में है, फजल बख्शिए कि हम जान सकें कि वो क्या है या कौन है, और उस गैर माबूद को अपने रास्ते से हटाने वाले हों। आपके और हमारे बीच में कोई और ना हो। और खुदाबंद, जिन्होंने आपको पहचाना नहीं, खा उनकी बैकग्राउंड कोई मजहब, कोई कौम, कोई कबीला ही क्यों नहीं, अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगी में काम कीजिए कि वो अपने आप को आपके स्पुर्द करें और नजात का पैगाम कबूल करके दूसरों को बताने वाले हों कि आपने उनकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। ऐ खुदावंद, दरखास्त करता हूं वो तमाम अजीज भाई और बहनें जो फेसबुक पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे, आप उनको जानते हैं, उनकी जरूरत को जानते हैं। खुदावंद, यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मोजज़ा कीजिए, बीमारियां शिफा में बदल जाए, लानतें बरकत में, खानदानी तौर पर ना इत्तफाकी मोहब्बत और प्यार में बदल जाए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपके लोगों को मुहैया हो जाए, और आपका कुदरत वाला नाम हम सब के वसीला से जलाल पाए। हमारी दुआ और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मसीह इब्न मरियम के मुबारक जलाली और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद खुदा आप सबों को बहुत बहुत बरकत बख्शे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, तब तक मेरी दुआ है आप खुदावंद की हिफाजत और अमान में रहें। थैंक यू सो मच।